آسمان پر موجود ستاروں کو سائنسدانوں نے گن لیا ہے اور ان کی آلموسٹ ایکوریٹ تعداد کو بتا دیا گیا ہے۔ ایک ریسرچ کے بارے میں بات کریں گے جس میں ریت کے ذرات زیادہ ہیں یا آسمان پر پھیلے ہوئے ستارے۔ آپ لوگوں نے اکثر شاعری میں، پوئٹری میں، کویتاؤں میں یہ سنا ہوگا کہ لوگ رات میں نیند کے انتظار میں یا محبوب کے انتظار میں ستارے گنتے ہیں۔ تو کیا ان کو گننے کی کوئی سائنٹیفک صحیح یا کوشش کی گئی ہے؟ کیا ان کا کوئی موازنہ، کمپیریجن، ان کی تلنا زمین پر پھیلی ہوئی ریت کے ذرات سے کی جا سکتی ہے؟ کیا ہم کائنات کو تو چھوڑیں، اب تک زمین پر موجود ریت کے ذرات کو گن پائے ہیں؟ اگر گن پائے ہیں تو کائنات کی اگر ایوریج لی جائے تو کیا کائنات کے ستارے ریت کے ذرات سے زیادہ ہیں یا کم ہیں؟ آج میں آپ کو لے چلوں گا ایک ایسی سائنٹیفک اسٹڈی کی جو موجودہ دور میں کی گئی اور جس میں سائنٹسٹ نے، ریسرچرز نے ایک کمپیریجن ڈرا کیا جو زمین پر موجود ریت ہے اس کا آسمان کے ستاروں کے ساتھ، کہ ریت کے ذرات ورسس آسمان کے ستارے۔ جی ٹائم ٹریولرز، آج کا موضوع تھوڑا سا ہٹ کر ہے۔ اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ ہم کیونکہ تھوڑا سا سائنٹیفکلی چیزوں کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں، ریفرنس کے ساتھ لوگ کیسے سوچتے ہیں، کیسے کرتے ہیں، اور بہت ساری میری جو چینل کی ویڈیوز ہیں وہ ریلیٹ کرتی ہیں اسپیس سے، آؤٹر ورلڈ سے، اس دنیا سے ہٹ کر کسی اور دنیا سے۔ تو آج ہم پہلے یہ تو دیکھیں کہ باخر کی دنیا ہیں کتنی زیادہ دنیا ہیں جو اب تک کاؤنٹنگ میں آ چکی ہیں یا آ سکتی ہیں، یا ان کے اوپر کاؤنٹنگ کا کوئی رول اپلائی ہوتا ہے۔ آئیں شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو۔ تارے گننا یا اختر شماری، اختر اردو کا ورڈ ہے اور اس کو جو ہے ستارے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ شماری، شمار کرنا، گننا، یا اس کی وہ کیا کہتے ہیں، گنت کرنا جو ہندی میں کہیں گے۔ شماری انسانی فطرت کا خاصہ یا ایک مشغلہ رہا ہے اور شاعروں نے نیند اور محبوب کے انتظار کو ستارے گننے سے ریلیٹ کر دیا۔ رات کے وقت جب آسمان پر نظر جاتی ہے اور نیند نہیں آ رہی ہوتی، کھلا آسمان ہوتا ہے، تو رات تارے گن گن کر گزار دی جاتی ہے، یعنی ہم ستاروں کی طرف دیکھتے رہتے ہیں۔ اچھا، یہ تھوڑی سی پرانی بات ہے، آج کل تو آسمان پہ ستارے نظر ہی نہیں آتے ہیں، اتنی آس پاس کی روشنیاں ہیں۔ ہاں، اگر آپ کوئی بہت ہی خوبصورت جگہ پر جہاں پر لائٹ پولوشن نہ ہو اور آپ کو رات کلیئر نظر آ رہی ہو، وہاں پر آپ جب جائیں گے تو آپ ستارے نہ بھی گنیں، آسمان پر ہی ستاروں کا ٹوٹنے کا شاور اس طریقے سے ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ کو ویسے بھی نیند نہیں آئے گی، چاہے آپ کا محبوب کوئی ہو، چاہے آپ کو نیند آ رہی ہو یا نہ آ رہی ہو۔ آپ رات کے تارے دیکھتے دیکھتے ان کی پوزیشنز چینج ہوتی ہیں، ان کی جگہیں چینج ہوتی ہیں، ٹوٹ ٹوٹ کے تارے گرتے ہیں، تو وہی دیکھتے دیکھتے آپ کی رات گزر جائے گی۔ تو میری ایک گزارش ہے کہ کہیں ایسی جگہ پر رات ضرور گزاریں۔ خیر، آگے چلتے ہیں۔ تو رات تارے گن گن کے گزرتی ہے، ساتھ ہی ساتھ دل میں یہ سوال ضرور اٹھتا ہے کہ آخر اس کائنات میں کتنے تارے ہوں گے؟ امریکی ماہر فلکیات کارل سیگن نے کہا تھا کہ زمین کے تمام ساحلوں پر ریت کے جتنے ذرے ہیں، کائنات میں اس سے کہیں زیادہ تارے موجود ہیں۔ لیکن کیا ان کا یہ دعویٰ درست ہے، صحیح ہے، کسی لاجک کی بیس پر ہے، یا کیا کائنات میں پھیلے ہوئے تاروں کو گنتی میں، شمار میں، گنت میں لایا جا سکتا ہے؟ کیمبرج یونیورسٹی کے ماہر فلکیات پروفیسر گیری گلمور ہماری کہکشاؤں میں موجود ستاروں کی گنتی کر رہے ہیں، یعنی کہ اس کام پر ایک بندہ گوروں نے ڈال دیا۔ تو اس گورے یعنی کہ پروفیسر گیری نے اس پروجیکٹ کو جو ہے وہ لیڈ کیا، جس کے تحت یورپی خلائی جہاز کے ذریعے، یعنی یورپی جو اسپیس شپ ہے اس کے ذریعے ہماری کہکشاں میں، یعنی کہ صرف ہماری ملکی وے میں تاروں کی گنتی کی جا رہی ہے۔ ہماری کہکشاں میں 2
खरब सितारे हैं। अच्छा, मैं आपको सितारा बता दूं क्या होता है। एक तो सैयारा होता है, ठीक है, जिसको ग्रह कहते हैं हिंदी में। तो सैयारा हमारी ज़मीन होती है, यानी इसकी अपनी कोई लाइट नहीं होती, ठीक है। और जबकि सितारा जो होता है उसकी अपनी एक लाइट होती है, ठीक है, वो जल रहा होता है और उसके आसपास सितारे घूम रहे होते हैं। तो सोचें हमारी कहकशां में, यानी कि गैलेक्सी में, मिल्की वे के अंदर, गैलेक्सी जो है हमारी, उसके अंदर क्या कहते हैं, 2 खरब सितारे हैं, यानी सूरज जैसे 2 खरब सितारे हैं, 2 खरब सूरज हैं। उन्होंने बीबीसी को बताया कि फासले के हिसाब से हमारी टीम ने जो पहला डाटा जारी किया, इसमें 2 अरब से कम सितारे हैं और ये हमारी कहकशां के मजमूई औसतन या एवरेज सितारों का सिर्फ 1% है। यानी अब तक जिन्होंने काउंटिंग की है वो सिर्फ 2 अरब सितारों की, 2 बिलियन स्टार्स की इन्होंने काउंटिंग की है, और जो कि ओनली 1% है हमारी कहकशां, हमारी जो मिल्की वे है उसके अंदर मौजूद सितारों में। अख्तर शुमारी या सितारे गिनने के इस मॉडल के मुताबिक हमारी कहकशां में तकरीबन 2 खरब सितारे हो सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक कहकशां का मामला नहीं है। इसके लिए पूरी कायनात में कितने सितारे होंगे इसका अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है। प्रोफेसर गैरी ने वजाहत की कि दूसरी कहकशाओं में हमारी कहकशां के बराबर सितारे हो सकते हैं। अगर हम ये पता लगा सकें कि कायनात में कितनी कहकशाएं हैं, तो फिर सितारे की तादाद का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। कुल कितनी कहकशाएं हैं? कायनात में कहकशाओं की, गैलेक्सीज की तादाद का पता चलाने से कबल हमें ये पता चलाना होगा कि कौन सी कहकशा कितनी इनलाइटन, रोशन है, वहाँ से कितनी रोशनी आ रही है। क्या दूसरी सारी कहकशाओं में हमारी कहकशां की तरह ही एक सेंटर का जो है होल है जहाँ से बहुत ज़्यादा रोशनी निकल रही है, या हर कहकशां की जो शेप है, जो उसका प्रॉपरली जो तरीकाकार है, वो अलग है? प्रोफेसर गैरी कहते हैं ये पता लगाने के लिए हमें कहकशाओं की दूरी और इनकी जिसामत, यानी इनके हुजम, इनके पूरी जो बॉडी है उसका पता लगाना होगा। इससे हम ये ख्याल कर सकते हैं कि कायनात एक ख़ास तरीके से फैल रही है, जिसे हबल लॉ कहा जाता है। हबल लॉ की मदद से प्रोफेसर गैरी कहकशाओं की चमक और हम इसकी दूरी के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। कायनात में तकरीबन 1 खरब कहकशाएं हैं। 1 खरब तो कहकशाएं हैं। 1 खरब को 2 खरब से अगर मल्टीप्लाई करो तो खुद अंदाज़ा करें कि कितने सितारे हो सकते हैं। और हर कहकशां में अगर कहा जाए तकरीबन 2 खरब सितारे हैं, और अब इन 2 हिस्सों को आपस में ज़रब दे दी जाए, आपस में इनको जो है मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो कायनात में सितारों की तादाद का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अच्छा, ये जो कहकशां बताई गई हैं ना कि तकरीबन 1 खरब कहकशाएं हैं, ये सिर्फ ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के अंदर हैं, और अभी हम यूनिवर्स का समझे चंद फीसद हिस्सा भी ऑब्जर्व नहीं कर सके। मतलब उसमें फीसद तो निकल ही नहीं सकता ना, उसमें परसेंटेज तो निकल ही नहीं सकती। जब हमें पता ही नहीं है कि पूरी कायनात कितनी बड़ी है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि जो मैं देख रहा हूँ वो पूरी कायनात का 10% है, 2%, 1% है। इस तरह अगर हम ये ज़रब देते हैं तो इस ज़रब के बाद अगर 2 के बाद आप 22 सिफर लगाएं तो जाकर उन सितारों की तादाद बनती है। अब मैं आ जाता हूं आपको साहिलों की रेत की तरफ, ठीक है। अभी फ़िलहाल हम साहिलों की रेत के ऊपर बात करेंगे। तो इसके लिए साहिलों की रेत के ऊपर कितने ज़र्रात हैं, रेत के कितने ग्रेन्स हैं, कितने उसके जो छोटे छोटे दाने होते हैं वो हैं, उसके लिए सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि दुनिया में कितने समंदर हैं और इनके साहिल कितने हैं, और इसके बाद साहिलों की लंबाई, चौड़ाई और गहराई कितनी है। ओपन स्ट्रीट एक ऐसा मंसूबा है जिसमें दुनिया भर के 20 लाख अफराद डाटा जमा करते हैं। अमेरिका और बरतानिया, कनाडा की हुकूमतें भी अपना डाटा इसके अंदर जमा कर रही हैं। एक रिसर्चर मुहक्किक जेनेडी ने कहा, अगर हम ओपन स्ट्रीट मैप के मुताबिक हिसाब लगाते हैं तो एक साहिल औसतन एवरेज
1.9 किलोमीटर लंबा है। इस तरह दुनिया में तकरीबन 3 लाख किलोमीटर तवील रेतीला समुद्री साहिल है, यानी कि 3 लाख किलोमीटर जो है वो लंबा एक साहिल जो है वो मौजूद है, एक बीच मौजूद है। एक मुरब्बा मीटर रेत में, यानी 1 स्क्वायर मीटर रेत में 10 अरब ज़रात होते हैं। अब इनकी कसाफत का पता लगाना होगा। कसाफत यानी कि वो कितने मोटे हैं, कितने छोटे हैं, कितने बड़े हैं, कितने छोटे हैं। ये बहुत ही मुश्किल काम है, ठीक है। हर जगह की रेत डिफरेंट है, लेकिन कहा जा सकता है कि ज़्यादातर साहिल 50 मीटर चौड़े और तकरीबन 25 मीटर जो हैं वो गहरे होते हैं, यानी कि इन डेप्थ में होते हैं। अब इनको अगर आपस में ज़रब देकर, यानी इनका जो एक एरिया का फार्मूला है वो लगाया जाए तो इनकी कसाफत का पता लगाया जा सकता है। हमारे पास एरिया भी आ गया, हमारे पास ये भी आ गया कि एक छोटे से एरिया के अंदर कितने जो हैं वो रेत के ज़रात मौजूद होते हैं। तो इन सारों को अगर हम ज़रब देंगे आपस में, जो पूरी एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे, तो उसका जवाब ये आ रहा है कि पहले 375, 375 के बाद 21 सिफर लगेंगे, ज़ीरोज़ लगेंगे। अगर मैं इसको राउंड फिगर में ले जाऊं तो हम पहले लिखेंगे 4 और उसके आगे हम 22 ज़ीरोज़ लगाएंगे, 22 सिफर लगा देंगे, ठीक है। सॉरी, 22 नहीं, 21 सिफर, 4 के बाद 21 सिफर लगाएंगे, ठीक है। तो ये एक अंदाजे के अंदर हमें ये पता चला कि जो आसमान के ऊपर अभी तक ऑब्जर्वेबल कहकशाओं में गैलेक्सीज के अंदर जो स्टार्स हैं उनकी जो तादाद है वो है 2 के आगे 22 ज़ीरोज़, ठीक है। 2 पहले लिखना है और उसके आगे 22 ज़ीरोज़ लगाने हैं। वेयर एज दूसरी तरफ जो हमें अभी तक के जो साहिल हैं उनको अगर नापा है, देखा है, तो उसके अंदर जो रेत के ज़रात हैं वो पहले एक बार आप 4 लिखोगे और उसके आगे 21 ज़ीरोज़ लिखोगे, यानी कि स्टिल आसमान पर मौजूद सितारे ज़मीन पर मौजूद रेत के ज़र्रात से ज़्यादा हैं। रेत के ज़र्रात तो हमारे सामने हैं, उन्हें हम काउंट कर चुके हैं। वेयर एज यानी कि तखमीने में एक जो एस्टीमेट है उसमें थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन अभी तक ऑब्ज़र्वेबल यूनिवर्स के अलावा जो और यूनिवर्स हमारे अभी ऑब्ज़र्वेशन के अंदर आएगी तो उसकी तादाद हमें नहीं पता कि उनमें कितने सितारे होंगे, ठीक है जी। तो इस तरह कह सकते हैं कि कार्ल सैगन ने अपने एस्टीमेट में बहुत हद तक दुरुस्त यानी कि एक्यूरेट कैलकुलेशन की, यानी कायनात में समंदरी साहिलों पर मौजूद रेत के ज़र्रात से ज़्यादा सितारे हैं। शायर और आशिक बेशक तारे गिन गिन कर रातें काली करते रहे, साइंसदानों ने एक वेल कैलकुलेटेड, एक साइंटिफिक लेवल पे बना हुआ एस्टीमेट दे दिया। अब अगर कहे आपसे कोई पूछे कि भाई आसमान पर कितने सितारे मौजूद हैं, ठीक है, तो आप आराम से उसे कह सकते हैं कि अब तक के ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के अंदर जो कैलकुलेट किया गया है वो 2 लिखने के बाद उसके आगे 22 सिफर लगा दिए जाएं, 22 ज़ीरो लगा दिए जाएं, तो आपको एक्चुअल सितारों की तादाद पता चल जाएगी। आज की वीडियो यहीं तक, नेक्स्ट मिलते हैं किसी और वीडियो में।